हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबर सबसे पहले आता है, जिसके दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में भी सब टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर्स, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव के साथ साथ जीरो, जिसका कोई साइन नहीं होता है। इन तीनों को ऐड करके हम उन्हें इंटीजर्स कह सकते हैं। इसका डिफिनेशन हो गया, all the negative numbers, positive numbers including zero is known as integer। अब दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब हो गया जो ऐसे नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होल नंबर। नाउ नेचुरल नंबर, द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes to infinite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 infinite. These are known as natural numbers. Subtypes of natural numbers are even numbers, odd number, prime number, composite number, co-prime number. ये सब आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो मुझे लगता है हमें बताने का जरूरत नहीं है। The fourth types is fractional numbers. The numbers which are in the form of fraction, in the form of p by q, where q is not equal to 0. Q is not equal to 0. We can say that is the fractional number, like 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, 7 by 10. We can also say the negative positive numbers as a fractional number. By when we write 3 by 1, that is a fractional number, and when we write -2 by 1, that is also a fractional number. Now fifth subtopic is decimal number. Decimal numbers means the numbers that has a decimal, a point, that is of two types: terminating decimal, repeating decimal. Terminating decimal means that does not repeat and has a countable meaning, and it is finite. Example 0.5, that cannot go ahead, and 0.25, that also can't go ahead. But in repeating decimal, we get 0.5 bar. 0.5 bar means that same number can repeat again and again and again and again. Then 0.36, the numbers on which bar is present, we have to repeat those numbers. If we have a question that 0.36 equal to, then we will write 0 bar 0.363636. Now line is the number that has no end point, that is non-terminating. That has no end point means no end point means it going both sides infinitely. And line segment means which has two end point, that has a definite length, and in line we don't have any definite length, it is infinitely length. That is terminating. Line segment is terminating, but line is not a terminating, so it is called non-terminating. Now we have countable numbers, means 2, 3, 0, 5, 0.5, 1, 2, that is not repeating, that is countable. Finite means don't repeat. And now it comes 0.3 means the number that is repeat again and again. We have a bar on the 3, then we can write it 0.3333, that goes to infinite. That is we can also say that it is uncountable, we can't count it, that is infinite, it goes to infinite. Non-terminating decimals, the number which doesn't which repeats again and again, that is called non-terminating decimal. Now we have fractional decimals. ऐसा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर डेसिमल जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर
फ्रैक्शन जो कि डेसिमल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सभी रैशनल नंबर में आते हैं, जिसमें कि होता है 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। ये 0.5 बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1/3 जो कि 0.333 आएगा, तो इसलिए हम 0.3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ 1/4 हुआ, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करें तो 0.25 आएगा, जो कि एक फाइनाइट है, काउंटेबल नंबर है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और उसके बाद आता है 1/5, जो डिवाइड करें तो 0.2 आएगा, तो जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब यहाँ पे 1/7 को ले लेते हैं, तो ये 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट करता है। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये बार बार ये आते जाएगा, यानी कि इसके बाद फिर आएगा 1 4 2 8 5 7 आया, इसके बाद फिर से आएगा 1 4 2 5 8 7, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1/2 दे देगा, फिर पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, आप बताएं, और फिर या फिर ये डेसिमल दे देगा, उससे पूछ देगा, ये पूछ सकता है। जब भी ऐसे ये बार रहे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और बार नहीं अगर रहे और बस वो डिफाइनाइट हो जिसको आप पढ़ सकते हैं, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसके बाद आता है कंडीशंस फॉर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें हम लोग किसी नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मान लीजिए गिवन नंबर हम लोग का a है, और a इक्वल टू जैसे अगर 2 ये उसका फैक्टर में 2 और 5 आता है, अगर उसके अलावा और कुछ भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। और अगर 2 और 5 का पावर जो भी m या m आता है या फिर n आता है, तो हम लोग उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कर सकते हैं, यानी कि उसका फैक्टर 2 और 5 आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे गिवन नंबर हो गया a ही है, और a इक्वल टू अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 नहीं है, यानी कि 3 और 6 मान लीजिए, तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कर सकते हैं। जैसे ये डेसिमल फॉर्म में रहेगा 0.5 0.2 ऐसा कुछ फॉर्म में रहेगा, और आपको ऐसे करके दे दिया जाएगा। फिर पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 अगर उसका फैक्टर आता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 5 नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सिंपल। अब दूसरे नंबर पे आता है इर्रेशनल नंबर, जिसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो बार बार रिपीट नहीं होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म नहीं होता, वैसा डेसिमल। तो इसमें आ जाएगा 0.01, फिर से 001 और 0001 00001, मतलब कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये बार बार आप ये कह सकते हैं कि नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं होगा, ये जाते जाएगा। इसको हम लोग इसके ऊपर 0.01 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो फिर रिपीट वाला हो जाएगा। तो ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें रिपीट नहीं होगी। ऐसा को क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एग्जांपल दीजिए नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, यानी इरेशनल नंबर का, तो आप 0.01 ऐसे करके दे सकते हैं, 0.12 ऐसे हो गए, सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब एक तरीका आता है जिसका फाइंडिंग रैशनल और इरेशनल नंबर बाय स्क्वायर क्यूब रूट, मतलब कि ये एक ऐसा तरीका जिससे हम रैशनल या इरेशनल नंबर पहचान सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल में √4 हो जाएगा। √4 यानी कि 2 वैल्यू आता है, तो ये फिर हो गया हम लोग का रैशनल नंबर। और यहाँ एग्जांपल में √2 है, √5 है, हम लोग इसका वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, तो ये इरेशनल में आ जाएगा। तो ये देखिए आप, ये इरेशनल नंबर में आ गया। ये क्यूब रूट हो गया √27, ये क्यूब रूट 27 हो गया, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, तो ये क्यूब रूट वाले में इरेशनल नंबर आ जाएगा क्यूब रूट में। और उसके बाद फिर ये √10 है, क्यूब रूट 10 है, क्यूब रूट 25 है, हम लोग इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये इरेशनल नंबर में आ जाएगा, तो हम लोग इसको इरेशनल और क्यूब रूट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर होने के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। रूल 1 पहला है कि इरेशनल नंबर के साथ हम
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर से जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक इरेशनल नंबर हो गया, इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, ये वाला ऐड करते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करने पे ये 4 रैशनल नंबर आएगा। मे बी रैशनल मतलब रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये इरेशनल लेते हैं सेकंड एग्जांपल में। ये फिर बीच में माइनस का साइन यहाँ पे लगाते हैं, मतलब कि एक ये हो गया एक इरेशनल, ये हो गया, और बीच में ये कोई सा भी साइन ये जैसे मान लिए हम लोग, तो उसके बाद फिर ये फिर से एक और इरेशनल, तो हम लोग का वो रैशनल मे बी रैशनल आएगा। एक और एग्जांपल हम लोग का हो गया √2 इंटू √2, यानी कि हम जब किसी भी रूट को √2 इंटू √2, मान लीजिए √a इंटू √a, √a को समझना है, √a को समझना है a का हाफ, ये आपको समझ लेना है, मतलब समझ लेना है। तो फिर ये √a और ये भी √a बाई √a, a/2 आधा आधा मान लेना है, आधा आधा मिलके एक हो जाएगा, यानी कि a। उसीलिए ये आधा 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 एक, तो हम लोग ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं। ये आधा है, ये भी आधा है, आधा और आधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी जुटेगा, तो ये आ जाएगा 2, आधा है ये 2 का आधा, ये 2 का भी आधा, तो ये 2 मतलब आधा आधा तो 1, तो ये 2 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जब भी हम रैशनल नंबर को किसी इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। मतलब ऐसा कहना है कि एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लें 2 एक रैशनल नंबर है, फिर बीच में प्लस का साइन है, और फिर ये √3 एक इरैशनल नंबर है, तो ये इरैशनल नंबर बन गया, ये खुद एक इरैशनल नंबर है। वैसे यहाँ पे जब हम डिवाइड का साइन लेते हैं, इरैशनल में 2 और फिर बीच में डिवाइड हो गया, और उसके बाद फिर इरैशनल नंबर, तो इरैशनल नंबर √3, ये भी इरैशनल हो गया। मल्टीप्लाई ले लें तो ये रैशनल हो गया, फिर मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई और √3 है, तो ये भी रैशनल नंबर है। इसका कोई वैल्यू हम लोग को उतना अच्छा से नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, अनकाउंटेबल है।